باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ واقعہ کربلا انسانیت کے لیے انصاف کی راہ پر چلنے کی تحریک ہے۔ سانحہ کربلا نے اسلامی تہذیب کی اخلاقی ضمیر کو نئی زندگی دی۔ یوم عاشور پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے شہدائے کربلا کی عظیم الشان قربانیوں اور حضرت بی بی زینب کے صبر و حوصلے کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہدائے کربلا اور اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے عقیدے کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ رگ رگ میں دوڑتی ہے۔ سانحہ کربلا نے اسلامی تہذیب کے اخلاقی ضمیر کو نئی زندگی دی۔ جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور شہادت اسلام اور اسلامی اقدار کی بقا کے لیے تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ واقعہ کربلا انسانیت کے لیے انصاف کی راہ پر چلنے کی تحریک ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سیاسی اخلاقیات کا بہترین ابدی منشور پیش کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام ہر مظلوم کے لیے جرت اور شجاعت کا استعارہ ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر عزاداران حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ مکمل سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ نئے 3 ٹیئر انتظامیہ سیکیورٹی ماڈل کے تحت گزشتہ 8 روز سے صوبے بھر میں مجالس اور جلوسوں کی جدید AI ڈرونز اور باڈی کیمز کے ذریعے نگرانی جاری ہے۔ پنجاب بھر میں 47,000 سے زائد مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے 1 لاکھ سے زائد پولیس اہلکار، پاک فوج کی 61 اور رینجرز کی 76 کمپنیاں تعینات ہیں، جبکہ 30,000 سے زائد تربیت یافتہ رضاکار بھی معاونت کر رہے ہیں۔ پہلی بار صوبائی کابینہ اور وزراء بھی فیلڈ میں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ محکمہ داخلہ میں قائم صوبائی انٹیلیجنس سینٹر 24 گھنٹے فعال ہے، جبکہ ڈیجیٹل وال پر تمام جلوسوں اور مجالس کی لائیو CCTV مانیٹرنگ جاری ہے۔ 5,500 سے زائد CCTV کیمروں، 4G ایونٹ کیمروں اور پرائیویٹ کیمروں کے ذریعے ریئل ٹائم نگرانی کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 5,000 کے قریب امام بارگاہوں کو QR کوڈ سسٹم سے منسلک کیا گیا ہے، جبکہ اسپتال، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، کلینک آن ویلز اور فیلڈ اسپتال مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے سبیلوں کے ساتھ اینٹی اسموک گنز اور اسپرنکلز کے ذریعے پانی اور خوشبو کا اسپرے بھی جاری ہے۔ سائبر پیٹرولنگ کے ذریعے 6,000 سے زائد مشتبہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور مواد PTA کو رپورٹ کیا گیا ہے، جبکہ کمیونیکیشن برقرار رکھنے کے لیے صوبائی نیٹ ورک بھی فعال ہے۔ صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ ہے اور حساس مقامات پر واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز اور سخت چیکنگ کا نظام موجود ہے۔ حکومت کے مطابق لائسنس یافتہ جلوسوں کے علاوہ کسی نئے جلوس یا روٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے MNA سائرہ افضل طاہر، ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق اور DPO فواد احمد کے ہمراہ مرکزی امام بارگاہوں، جلوس روٹس اور سیف سٹی سینٹر کا دورہ کیا۔ انہوں نے CCTV مانیٹرنگ، سیکیورٹی، صفائی، سبیلوں اور لنگر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ذیشان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر عزاداروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ تمام متعلقہ ادارے محرم انتظامات کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا عرس اختتام پذیر ہو گیا۔ بہشتی دروازہ 1 سال کے لیے بند کر دیا گیا۔ 5 راتوں میں تقریباً 5 لاکھ زائرین نے دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کی۔ تفصیلات طارق سجاد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 784ویں سالانہ عرس کی 15 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئی۔ آخری روز بہشتی دروازے کی قفل کشائی کی سعادت ڈپٹی کمشنر آصر رضا اور DPO جوید چدر نے حاصل کی۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور یہ خاص نعمت ہے جو آج مجھے سعادت نصیب ہوئی، اور یہ وہ سلسلہ ہے جس کو یہاں پہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے تعمیر کیا اور باب امن ڈکلیئر کیا۔ تو آج مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے اس باب امن کو واہ کیا۔ ان کا پیغام محبت، امن، انسان دوستی ہے، رواداری ہے۔ 5 راتوں میں تقریباً 5 لاکھ زائرین بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کی۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی سمیت ملک بھر کی اہم شخصیات نے عرس تقریبات میں شرکت کی۔ پاکستان کا جو وجود ہے وہ انہی اولیاء اللہ کی نسبت سے ہے، وہ ان کی وجہ سے ہی آج اس آزاد ملک میں ہم بیٹھے ہیں۔ پیارے ملک وطن کے لیے میری ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ قیامت
कायम दायम रखे हमारे मुल्क को। दरगाह का बश्ती दरवाजा आइंदा 1 साल के लिए बंद कर दिया गया, जबकि आज मज़ार को गुस्ल देने के बाद दरगाह का नूरी दरवाजा शोदा करबला के लिए सोग में 40 रोज के लिए बंद किया जाएगा। तारिक सजाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। आरिफ वाला के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में 10 मुहर्रमुल हराम के मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद अपने मरहूम अजीज़ों की कब्रों पर फातिहा खानी और दुआ के लिए पहुंची। लोग कब्रों की सफाई, मुरम्मत और लिपाई में मसरूफ़ रहे, जबकि मरहूमीन के साले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। शहरियों का कहना था कि मुहर्रमुल हराम अपने बुजुर्गों को याद रखने, उनके लिए दुआ करने और आखिरत की तैयारी का दर्स देता है। कब्रिस्तानों में अक़ीदत, एहतराम और खामोश इबादत का माहौल देखने में आया। शिकारपुर में भी आशूरा मुहर्रमुल हराम के मौके पर मरकजी जुलूस तारीखी मरकजी इमाम बारगाह करबलाए मोहल्ला लखीदर से बरामद होगा, जबकि दौलत शाह, जंगल शाह, अलिफ शाह, शाह हुसैन, शाह नजफ, हैजी मोहल्ला और दीगर इमाम बारगाहों से भी मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इंतजार अहमद अराई से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी इमाम बारगाह लखीदर करबलाए मोहल्ला के अंदर, जहाँ से कुछ देर बाद जो है वो जुलूस जो है वो बरामद किया जाएगा, ताज़िया बरामद किया जाएगा। तो उसके बाद जो है तमाम शहर के इमाम बारगाहों से जो है वो ताज़िए जो है वो निकाले जाएंगे, और जिसके अंदर अलिफ शाह शहीद और दौलत शाह पीर, जंगल शाह पीर और शाह नजफ, हैदरी मोहल्ला, ये सब निकल कर जमानी हाल पर जमा होंगे। और उसके बाद नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी, जिसके बाद मजलिस बर्पा की जाएगी, जिसके अंदर शहदा की, करबला के शहदा के तमाम जितने भी शहदा हैं उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। और उसके बाद मातम सीना को भी की जाएगी और जंजीर जनी की जाएगी, जिसके बाद तमाम जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए निकलेंगे। और इसके बाद जो है अगर सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो सिक्योरिटी के अंदर 3000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसके अंदर 400 से ज़ायद जो हैं वो रेंजर्स और आर्मी के एहलकार तैनात किए गए हैं। सफाई सुथराई के लिहाज से बात करूं तो म्यूनसिपल के बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं शहर के अंदर, और खारजी और दाखिली रास्ते जो हैं शिकारपुर शहर के, उनको खारदार ताले लगाकर बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी नागानी आपस से आने जाने वाले जितने भी आज़ादी अपना मोमिनीन हैं उनको जो है वो जुलूस के अंदर शामिल करने के बाद, जमात राशि लेने के बाद जो है वो शामिल किया जा रहा है। जी। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर की हिदायत पर 10 मुहर्रमुल हराम के मौके पर 130 मजालिस और 116 जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 2 कंपनी पंजाब रेंजर्स, 2 कंपनी पाकिस्तान आर्मी और 4293 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। जुलूसों और मजालिस के रास्तों पर सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन, सख्त चेकिंग और मुसलसल निगरानी जारी है। सीसीटीवी कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स के जरिए सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाया गया। पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान मुकम्मल राबता बरकरार रहा है। सीपीओ सादिक अली डोगर का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान का क़याम और अज़ादारों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, जबकि शहरियों से अमन, भाईचारे और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए पुलिस से ताउन की अपील भी की गई है। मीरपुर खास में यौम आशूरा पर लंगर न्याज़ हुसैन का बड़े पैमाने पर सिलसिला जारी है। जगह जगह दलीम, बिरयानी, शरबत का अहतमाम किया गया है। यौम आशूरा पर अज़ादारों को तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। मीरपुर खास में भी यौम आशूरा पर लंगर न्याज़ हुसैन के सिलसिले में बड़े पैमाने पर बिरयानी, दलीम और शरबत की सबीलों का एहतमाम किया गया है, जहां बड़ी तादाद में लंगर न्याज़ हुसैन दिए जाने का सिलसिला जारी है। जगह जगह न्याज़ और शरबत की सबीलों पर आवाम का रश देखा जा रहा है, जबकि निकाले जाने वाले जुलूसों में अज़ादारों को मुख्तलिफ तरीक़ों से न्याज़ और दीगर अशिया फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब यौम आशूरा पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तिब्बी मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जिसमें मोहम्मद मेडिकल कॉलेज, MQM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, ज़िला डिस्ट्रिक्ट हेल्थ, क़याम विलायत, स्काउट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत दीगर कैंपों पर अज़ादारों और शहरियों को तिब्बी इमदाद और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं, और किसी भी मुमकिन हादसे के लिए पुलिस को भी तैनात किया गया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहजाद खान, 5 न्यूज़, मीरपुर खास।
मंडी बहाउद्दीन में यौम आशूर के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए DSP, SP, SHO समेत 1500 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात हैं। जुलूस के रास्तों से मुल्हिका गलियों को कनातें लगाकर बंद कर दिया गया, जबकि हसास मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी भी मौजूद है। जुलूस की मुकम्मल निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं। जुलूस के हमरा रेस्क्यू 1122, बम डिस्पोजल स्क्वाड, एम्बुलेंस और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है। मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वार्ड नंबर 5 में पड़ाव करेगा, जहां जाकिरीन खिताब करेंगे, जबकि बाद अज़ां मातम के बाद जुलूस शाम 5 बजे इमाम बारगाह सज्जादिया में इख्तिताम पजीर होगा। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी 10 मुहर्रम अल हराम की मुनासिबत से लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की याद को ताज़ा करने अपने प्यारों को मिलने के लिए कब्रिस्तान का रुख करते हैं, जहां वो मिट्टी और फूल डालते हैं और फातिहा ख्वानी भी करते हैं। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा लाहौर नईम अंसारी की रिपोर्ट में देखिए। 10 मुहर्रम उल हराम यौम अशूरा को कब्रिस्तान जाने की रवायत हमारे माशरे में बहुत आम है। इस दिन लोग अपने वफात पा जाने वाले प्यारों की कब्रों पे जाते हैं, इनकी कब्रों की सफाई करते और इनके लिए दुआए मगफरत अदा करते हैं। 10 मुहर्रम का दिन इस्लामी तरीक में इंतहाई अहमियत और अकीदत का हामिल है। इस दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा और इनके अहले बैत ने मैदान करबला में हक़ के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। इस दुनिया जहाँ दुनिया भर में इन अजीम शोहदा को खराज अकीदत पेश किया जाता है, वहाँ लोग अपने घर के मरहूमीन को भी याद करते हैं। कब्रिस्तान जाकर अपने बुजुर्गों और प्यारों के लिए साले सवाब करते, फातिहा पढ़ते और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं भी करते हैं। 10 मुहर्रम को इसलिए रुख करते हैं कि अपने अहलो खाना के लिए दुआ खानी की जाए और मिट्टी वगैरह डाली जाए। ये सिस्टम ही कुछ ऐसा हो गया, घरों से निकला ही नहीं जाता, ठीक है ना। जैसे जैसे ये माहौल तेजी की तरफ बढ़ रहा है, अवाम का नफ्सो नफ्सी का आलम है, जिंदों को भी भूल गए हैं तो मरों को कौन याद रखेगा। ये हमने अपने प्यारों की कब्रें की मरम्मत की है, उस पर फूल डाले हैं और दुआएं मफरत की है कि अल्लाह पाक इनकी मफरत करे और इनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमें भी इनके पास आने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह। 10 मुहर्रम का दिन है और हम सब बहन भाई कब्रिस्तान पे आए हुए हैं और सवाब ध्यान कर रहे हैं और कब्रों की मरम्मत कर रहे हैं। इमाम हुसैन दी शहादत देने अज 10वां मुहर्रम है। असी अपने वड्डियां दी भैन भरावां दी माँ बाप दी कबर ते आए हैं, सुबह दी कबर बना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। अहले खानदान चो जेडे चले गए ने उन्हां दी कबर ते उन्हां नूं लियाना चाहिए, दसना चाहिए, दुआए मगफरत करनी चाहिए। यौम अशूरा को इस्लाम में एक इंतहाई बाबरकत और अजमत वाला दिन माना गया है। हदीस के मुताबिक इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को फ़िरौन के जुल्म से नजात दिलाई थी। मुसलमानों का ये अकीदा है कि इस मुबारक दिन की बरकत से दुआओं की मकबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं, इसलिए लोग अपने मरहूमीन की बख्शिश के लिए खुसूसन इस दिन कब्रिस्तान का रुख करते हैं। कैमरा टीम के हमरा नईम अंसारी, 5 न्यूज़ लाहौर। रुख करेंगे कसूर का, जहां पर यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सादात मंजिल से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन है। मरकजी जुलूस शाम को हुसैनिया इमाम बारगाह जाकर इख्तिताम पजीर होगा। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त जुलूस में ही मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात सज्जाद से जानेंगे कि सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात की क्या सूरत हाल है। सज्जाद बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कसूर में भी यौम अशूर का मरकज़ी जुलूस जो है ना वो बरामद हो चुका है और अपने रवायती रस्तों से होता हुआ जो है वो शाम को हुसैनिया माबार का जाकर जो है इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर और DPO कसूर जो है इस वक्त जुलूस के रास्तों पर ही मौजूद है। हम उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी सर बताइएगा, क्या कहेंगे आज के बाद? पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में जो है अशूरा के आज हमारे 5 कैटेगरी है कि प्रोसेशन है। चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे जितने सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स है उनको इन प्लेस किया गया है। मैं जिक्र करना चाहूँगा इंतज़ामी मामलात की, तो उसमें मोबाइल और स्टैटिक्स बिल्स हैं। आवाम की सहूलत के लिए जो है पब्लिक टॉयलेट्स का भी इंतज़ाम किया गया है। फील्ड हॉस्पिटल्स, रेस्क्यू 1122 और ख़ास तौर पे जो है जो प्रोसेशन के शुरका हैं गर्मी की हिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए जो है मिस फैंस और साथ साथ जो है उन पर एयर के गुलाब का छिड़काव भी किया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट भर को जो है CCTV कैमरास के ज़रिए जो मॉनिटर भी किया जा रहा है। जी सर आपके मोहतरमा CM पंजाब के सेफ एंड सिक्योर पंजाब के विजन के मुताबिक आज आप देख रहे हैं कि यौम अशूर पे तमाम डिस्ट्रिक्ट कसूर में
3 लेयर सिक्योरिटी के साथ प्रोटेक्ट किया गया है। इसके अलावा CCTV कैमराज, सेफ सिटी कैमराज और ड्रोन कैमराज के ज़रिए सर्वेलेंस की जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बिल्कुल बेहतरीन पुरअमन और हिफाजती इंतजामात में आशूरा के जो प्रोसेशन है वो जारी है। जी, जैसे आपने बात सुनी डिप्टी कमिश्नर की और DPO कसूर की, उनका यही कहना है कि CCTV कैमरे, ड्रोन कैमरे की तरफ से जो है वो तमाम निगरानी की जा रही है और दीगर इंतजामात भी जो है ना वो किए गए हैं। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। दूसरी जानिब मुनीतिये में यौम आशूर का पहला मरकजी जुलूस इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए दूध और मीठे पानी की सबीलें कायम की गई हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रेंजर्स, पाक फौज, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और दीगर इदारे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। शहर में तकरीबन 2000 पुलिस अफसरान और एहलकार और 500 ट्रैफिक एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि जुलूस के रूट की CCTV कैमरों के जरिए मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। मरकजी जुलूस मगरिब के बाद अपने मुकर्ररा मकाम पर इख्तिताम पसीर होगा। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां पर एक गाड़ी का टायर ब्रस्ट होने के बायस वो बेकाबू होकर नहर में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर पानी में डूब गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गई और पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए गाड़ी से ड्राइवर की लाश निकाल ली। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 40 साला आकिब नज़ीर वल्द नज़ीर अहमद के नाम पर हुई है। लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए DHQ अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया, जबकि गाड़ी को भी नहर से निकाल लिया गया। रुक करते हैं रहीम यार खान का, जहां यौम आशूर के मौके पर मरकजी जुलूस इमाम बारगाह लंगर हुसैनी से बरामद हुआ, जिसमें अलम, सलजना, चूल्हा और ताज़िए के छोटे बड़े जुलूस भी शामिल हैं। जिला भर में 72 जुलूस और 14 मजालिस मुनक्किद की जा रही हैं। जुलूस के रास्तों पर मुल्का तमाम गलियों और दाखिली रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जबकि इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं। जुलूस में शामिल अफराद की 3 मरहलों में चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त दी जा रही है, जबकि सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। FIA इस्लामाबाद जोन ने खुफिया तला पर एक घर पर छापा मारा, जहां इंसानी प्लेसेंटा की गैर कानूनी प्रोसेसिंग और ड्राइंग के लिए मुकम्मल प्लांट कायम था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजमान इंसानी प्लेसेंटा को प्रोसेस करके तैयार शुदा मसनूआत बैरून मुल्क बिलखुसूस वियतनाम स्मगल करते थे। कार्रवाई के दौरान 3 चीनी और 2 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। मज़ीद तफ्तीश के दौरान उसी नेटवर्क से मुंसलिक एक और मकाम की निशानदही पर सेक्टर E में भी छापा मारा, जहां इसी नोयत का एक फॉल प्रोसेसिंग सेंटर पाया गया। FIA ने मौके से प्रोसेसिंग आलात और तैयार शुदा मसनूआत भी बरामद कर ली। हुकाम के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके नेटवर्क के दीगर किरदारों और सरगर्मियों की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। FIA इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कब्रिस जाने वाली परवाज़ के दौरान मुश्तबा सरगर्मी पर 3 मुसाफिरों को रोका गया। जांच पड़ताल के दौरान इब्तदाई तौर पर गैर कानूनी सफरी इंतज़ामात, जाली दस्तावेज़ात और इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क से मुमकिन रवाबित के शवाहिद सामने आए हैं। हुकाम ने तीनों मुसाफिरों को तैयारे से ऑफलोड करके मज़ीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद के हवाले कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि वाक़या करबला का असल पैगाम मलूकियत, जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद है। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता हक, अदल और मुज़ाहमत का रास्ता है। खानवादा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला में अपनी ज़ात या इक़्तिदार के लिए नहीं, बल्कि एक नज़रिए और उम्मत की इस्लाह के लिए कुर्बानी दी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से साबित किया कि बातिल निज़ाम के सामने खामोशी इख्तियार करना अहले हक़ का रास्ता नहीं। उन्होंने कहा कि आज उम्मत मुस्लिमा को वाक़या करबला के असल मकसद को सामने रखते हुए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ीम शहादत उम्मत के लिए पैगाम है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और शरीयत के नफाज के लिए कोशिश करें। अकामत दीन के क़याम की जदोजहद दरअसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन की रूह है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि मुहर्रमुल हराम हमें याद दिलाता है कि इज्जत की ज़िंदगी हक के साथ खड़े होने में है। जो कौमें जुल्म के सामने झुक जाती हैं वो अपनी आज़ादी और वक़ार खो देती हैं।
साहिवाल में यौम आशूरा के सिलसिले में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कस्र बतूल से बरामद होकर अपने मुकर्ररा करदा रास्तों पर रवा दवा है। साहिवाल में जुलूस की तादाद में सिक्योरिटी के बारे में इंतजामात क्या हैं, जानते हैं साहिवाल से इमरान नज़ीर अराई से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, साहिवाल यौम आशूरा का जो मरकजी जुलूस है वो कस्र इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने मुकर्रर करदा रस्तों पर रवान दवा है। अगर मैं बात करता चलूँ, साहिवाल में 60 के करीब जो जुलूस थे, जिनमें 11 जो है एक कैटेगरी के जुलूस थे, वो भी अपने मुकर्रर करदा रस्तों पर रवान दवा है। और जो महला ईरानिया और गल्ला मंडी से बरामद होने वाला जुलूस जो है वो मरकजी जो इमाम बारगाह कस्र बतूल जुलूस में जम होकर अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर रवान दवा है। अगर मैं बात करता चलूँ मजालस के हवाले से, तो 11 मजालस जो है वो साहिवाल में मुनक्कद की गई है। इसी तरह अगर मैं सिक्योरिटी की बात करता चलूँ, तो साहिवाल में यौम आशूरा के दिन को फुल प्रूफ बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। खारदार तारें लगाई गई है, छतों पर स्नैपर तैनात किए गए हैं और 3 लेयर में जो है सिक्योरिटी से गुजर कर ही जुलूस में एंट्री दी जा रही है। इसी तरह अगर मैं बात करते चलूँ सबीलों के हवाले से, तो नजर न्याज का सिलसिला भी रूट्स के ऊपर जारी और सारी है। पानी की सबीलें लगाई हैं, हलीम तैयार हुआ है और बिरयानी जो चावल वो भी बांटे जा रहे हैं। और मुकर्रर करदा रास्तों पर जो है 1122 के दस्ते भी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। सिविल डिफेंस के इदारे भी और वॉलंटियर भी जो है अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम देते नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करते चलूँ गर्मी के हवाले से, तो गर्मी भी शदीद तरीन है, जिसमें 1122 और वासा के जो एहलकार है वो पानी का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं, ताकि कम से कम गर्मी की हिद्दत को कम किया जा सके। जी सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुहर्रमुल हराम हमें शहदाए करबला की कुर्बानी और दीन इस्लाम से उनकी लाजवाल वाबस्तगी की याद दिलाता है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा आलमी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त खित्ता कई तनाज़ात और जंगी हालात से गुजर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी ने यौम आशूरा के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि वाक़या करबला हक़ व बातिल के मार्के में इंसानियत की दायमी फतह का उन्वान है। पेशावर से जारी अपने बयान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी ने कहा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की असीम कुर्बानी ने जुल्म के ऐवानों को लरज़ा कर हक़ की सरबलंदी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने कहा कि वाक़या करबला जुल्म के खिलाफ डट जाने, हक़ का परचम बुलंद रखने और इंसानियत की रहनुमाई का दर्ज देता है। DIG लाहौर फैसल कामरान का कहना था कि शहर भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। 44 से ज़ायद जुलूसों की सिक्योरिटी की जा रही है। 3 अहम जुलूस जिनमें ठोकर नियाज बेग अंदरून और कृष्ण नगर की फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है, जबकि QR बटन का पहली बार इस्तेमाल भी किया गया है। रावलपिंडी में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जारी है, जहाँ अज़ादार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। रावलपिंडी से देखते हैं फैसल अहमद सत्ती की ये रिपोर्ट। आशूर के मौके पर रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मरकजी और झेली जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है, जबकि इमाम बारगाहों और मजालिस में अज़ादार बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं। शहर की फजा सोगवार है और पुलिस की जानिब से जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी नफरी तैनात है। दाखिली रास्तों पर चेकिंग का अमल जारी है, जबकि शहर भर में कैमरों के जरिए निगरानी भी की जा रही है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। उलमा इकराम का कहना है कि यौम आशूर हमें कुर्बानी, सब्र और हक़ पर डटे रहने का दर्स देता है और यही पैगाम आज भी उम्मत मुसलमा के लिए मशाले राह है। हमारे सुन्नी शिया बरदरान अहले वतन जो हैं सारे के सारे जो है वो यकजा होकर संजीदगी से, बलिदगी से, मोहब्बत से, प्यार से, रवादारी से, इखलाक से, इखलास से मजालिस में शिरकत करें, जुलूस में शिरकत करें, अज़दारी को आम करें और दुश्मन की किसी बात पर जो वो कान न धरें, इसलिए कि दुश्मन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मशाइर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, वो बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है। वो सब गम है दो रोज़ा, गम शबीर वही है, 1400 बरस बाद भी तासीर वही है कि हुकूमत से हमने हमेशा ताउन किया है, हुकूमत ने भी हमसे ताउन किया है। अब ये वक्त ऐसा है कि मुश्तरका दुश्मन, अज़ली दुश्मन हर तरह से हमारे ख़िलाफ़ कमर कस के खड़ा हुआ है, लिहाजा हमें भी एक और नेक होकर इस्लाम, पाकिस्तान और अमन अमान के लिए एक होना होगा।
یوم عاشور راولپنڈی میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جہاں ایک جانب عزاداری کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب امن، بھائی چارے اور اتحاد کا پیغام بھی نمایاں طور پر سامنے آ رہا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ فیصل احمد ستی، 5 نیوز، راولپنڈی۔ میئر سکھر اور ترجمان سندھ حکومت ارسلان اسلام شیخ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ قیادت کی ہدایت پر محرم الحرام کے دوران عزاداروں کی خدمت میں تمام متعلقہ ادارے مصروف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عزاداران کی سہولت کے لیے 50 سے زائد سبیلیں قائم کی گئیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عزاداران کی سہولت کے لیے 50 سے زائد ایمبولینسز، میڈیکل کیمپ اور شٹل سروس بھی فراہم کی گئی، جبکہ جلوس کے راستوں پر گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے روڈ واشر اور نوزل بیس شاور سسٹم نصب کیے گئے ہیں۔ ارسلان اسلام شیخ کے مطابق 9 محرم کے جلوس میں شدید رش کے باعث 4 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ ایک زخمی کی حالت تشویشناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے لیے 2000 سے زائد پولیس اہلکار، 8 سے زائد پولیس افسران اور لیڈیز پولیس اہلکار تعینات کی گئیں، جبکہ رینجرز اور پاک فوج بھی سیکیورٹی انتظامات میں معاونت کر رہے ہیں۔ سنس کو بھی ایڈریس کیا جائے، جس میں لیڈیز کانسٹیبلز کی بھی ایک بھرپور میجورٹی کے اندر ڈیوٹیز جو ہیں وہ اسائن کی گئی ہیں، ساتھ ساتھ رینجرز کی کولابریشن اور پاکستان آرم فورسز کی کوئی خدمات جو ہیں وہ اس میں کولابریٹڈ اور انکارپوریٹڈ ہیں، اللہ نہ کرے کہیں ضرورت پڑے۔ منڈی بہاؤالدین میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر رواں دوا ہے۔ ضلع بھر میں آج چھوٹے بڑے 63 ماتمی جلوس اور 40 شام غریبہ کی مجالس منعقد کی جا رہی ہیں۔ مرکزی جلوس کے علاوہ شاہانال، لوک مجیاں والا، لوک شاہانیہ اور دیگر علاقوں سے بھی جلوس برآمد ہوئے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے پبلک پروسیکیوشن رانا بلال احمد نے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ کر کے سیکیورٹی اور انتظامات کا جائزہ لیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈی پی او کامران عامر خان کی ہدایت پر پولیس کی بھاری نفری، اسنائپرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے تعینات ہیں۔ جلوس کے راستوں سے ملکہ گلیوں کو رکاوٹیں اور خاردار تارے لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ جلوس کے ہمراہ ریسکیو، پیرامیڈیکل اسٹاف اور پاکستان رینجرز کے اہلکار بھی موجود ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ کے مطابق منڈی بہاؤالدین، ملک پالا اور بھالیا میں صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک موبائل فون سروسز معطل رہے گی۔ مرکزی جلوس شام 5 بجے امام بارگاہ سجادیہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ سکھر میں یوم عاشور کے موقع پر مرکزی حسینیہ امام بارگاہ دادو چوک سے مرکزی ماتمی جلوس برآمد ہوا، جو شکارپور روڈ، بیراج روڈ، گھنٹہ گھر، معصوم شاہ مینارہ روڈ، نیم کی چڑھائی، پریس کلب روڈ اور ایوب گیٹ سے ہوتا ہوا واپس مرکزی حسینیہ امام بارگاہ دادو چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ پولیس کے مطابق جلوس کے راستوں اور اطراف کی سڑکوں کو خاردار تاروں اور رکاوٹیں لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا، جبکہ عزاداروں کی آمد اور واپسی کے لیے الگ الگ راستے مختص کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یوم عاشور پر ضلع بھر میں 43 چھوٹے بڑے ماتمی جلوس، 100 مجالس عزا اور 3 بڑے جلوس برآمد ہوئے۔ سیکیورٹی کے لیے 2450 سے زائد پولیس افسران و اہلکار، 150 لیڈی پولیس اہلکار، رینجرز کے جوان اور پاک فوج کی 3 کمپنیاں سٹینڈ بائی ہیں۔ میرپور ماتھیلوں میں یوم عاشور کے موقع پر ضلع کوٹھی بھر میں 89 ماتمی جلوس برآمد ہوئے، جبکہ مرکزی جلوس میرپور ماتھیلوں میں پھر باقر علی شاہ سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر گوٹھی منظور احمد کنرانی اور ایس ایس پی محمد انور کیتران نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ریسکیو 112، پیرامیڈیکل اسٹاف، ضلع انتظامیہ اور میونسپل عملہ الرٹ ہے، جبکہ ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ ایس ایس پی کے مطابق ضلع بھر میں 69 امام بارگاہوں، 89 جلوسوں اور 596 مجالس کی سیکیورٹی کے لیے 3000 سے زائد پولیس اہلکار، سینٹ رینجرز، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور اضافی کمانڈوز تعینات کیے گئے ہیں۔ جلوسوں اور مجالس کی نگرانی سی سی ٹی وی کیمروں، ویڈیو ریکارڈنگ اور سادہ لباس اہلکاروں کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کا یوم عاشور کے موقع پر حیدرآباد کا تفصیلی دورہ، مرکزی و ضلعی جلوسوں کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ سندھ نے قدم گاہ مولا علی سے برآمد ہونے والے مرکزی جلوس میں شرکت کی اور سیکیورٹی امور کا موقع پر معائنہ کیا۔
ज़ियाउल हसन नंजार ने पुलिस डिप्लॉयमेंट, सिक्योरिटी, हिकमत अमली, दाखिली और खारिजी रास्तों की निगरानी और हसार बंदी के इंतजाम पर इत्मीनान का इज़हार किया। यौम आशूर के जुलूसों और मजालिस के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि जुलूस के रूट्स पर मुश्तबा सरगर्मी की बरवक्त निशानदही के लिए निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। ननकाना साहब में यौम आशूर इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इमाम बारगाह कश्फ फ़ातिमा-उज़-ज़हरा से शबिया ज़ुलजना, अलम और ताज़िया का मरकज़ी जुलूस बरामद हो गया है। जुलूस में हज़ारों अज़ादार शरीक हुए जो शहदाए करबला की याद में सीना ज़नी, जंजीर ज़नी, नुहा ख़्वानी और मरसिया ख़्वानी कर रहे हैं। इमाम बारगाह कश्फ फ़ातिमा-उज़-ज़हरा में मजलिस अज़ा के इनेकाद के बाद मरकज़ी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ बेरी चौक पहुँचेगा, जहाँ उलमा कराम और ज़ाकिरीन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शहदाए करबला की असीम कुर्बानियों पर रोशनी डालेंगे। बाद अज़ां जुलूस मुख्तलिफ मकामात से गुजरता हुआ रात को हुसैनी बाग पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। आशूरा मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए ज़िला इंतज़ामिया DG खान मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने DPO सादिक बलोच के हमरा कोट छट्टा का दौरा किया और जुलूस मजालिस के इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज़ उमर सईद और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने जुलूस मजालिस के मुंतज़मीन, मुतवल्लियान, लाइसेंस दारान और शहरियों से मुलाकातें की। इस मौके पर सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों से भी मुलाकात की गई, जबकि मुख्तलिफ महकमों के फोकल पर्सनस और नुमाइंदों से इंतजामात और बाहमी राबतों का जायज़ा लिया गया।